Hello students, welcome to EduCraft Academy. We'll start with digestion and absorption. ठीक है, we are starting with human physiology. Digestion and absorption. What is digestion? What is digestion? Digestion is the process of conversion of complex food substance to simple absorbable forms. Digestion क्या है? It is the process of conversion of complex unabsorbable complex food substance that cannot be absorbed by a body. This complex food substance is broken down into simpler absorbable form. This process of conversion of complex food substance to simple absorbable form is digestion, and this digestion is carried by our digestive system. It is carried by digestive system by mechanical and biochemical method. ठीक है, this is digestion. It is carried out by digestive system. This digestive system, it consists of alimentary canal and associated glands. Digestive system में क्या present है? Alimentary canal and associated glands. ठीक है, चलो तो फिर स्टार्टिंग से ही देखते हैं. Food is one of the basic requirement of all living organism. All living organisms need food for growth and development. Require food for growth and development, right? The major component of food are carbohydrate, protein, fats, vitamins and minerals. These vitamins and minerals, they are required in small amount, but they are required. ठीक है? Food provides energy and organic material for growth, development and repair of tissues. ठीक है, अब हम देखते हैं digestive system. Digestive system, it consists of alimentary canal and associated gland. Now let's see what are the parts of digestive system. See, this digestive system, it starts from mouth. This is mouth. ठीक है, it starts from mouth and then this is oral cavity. Oral cavity is also called buccal cavity. ठीक है, starts with mouth, then oral cavity is also called buccal cavity. After this is pharynx. ठीक है, pharynx. See, in pharynx it consists of nasopharynx, oropharynx, laryngopharynx. ठीक है, the part of pharynx that is behind this nose is nasopharynx. The part of pharynx that is behind this mouth is oropharynx, and the part of pharynx that is behind this neck, that is laryngopharynx. ठीक है, pharynx के 3 पार्ट हैं, nasopharynx, oropharynx, laryngopharynx. nasopharynx, oropharynx, laryngopharynx. ठीक है, pharynx समझ गए, pharynx के 3 पार्ट्स. ठीक है, माउथ, then mouth, फिर the place where food is placed in the mouth, that is buccal cavity या oral cavity. ठीक है, this will be buccal cavity और oral cavity. Then associated glands हमने पढ़ा था, तो associated glands include salivary gland. The associated glands, they include salivary glands. Salivary glands are 3 in number. They are parotid gland, submaxillary gland, sublingual gland. ठीक है, submandibular gland. ठीक है, parotid gland, submandibular gland, sublingual gland. ठीक है, ये तो क्या है मेजर. देखो, सबसे पहली चीज, salivary glands are of 2 types, major salivary gland and minor salivary gland. ठीक है, major salivary gland, minor salivary gland. मेजर यानी बड़े साइज में बड़े होते हैं वो ग्लैंड्स. ठीक है, माइनर यानी हमारे माउथ में बहुत सारे छोटे छोटे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. दे आर माइनर सलाइवरी ग्लैंड. मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स आर 3. दे आर पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड. ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड इज प्लेस्ड बिहाइंड द ईयर. ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड इज प्लेस्ड बिहाइंड ईयर. Submandibular gland is placed below the mandible and sublingual gland is placed below the tongue. ठीक है, lingual word का मतलब होता है related to tongue. Lingual word का मतलब होता है related to टंग, ठीक है, आपको लिंगुअल वर्ड इज रिलेटेड टू
टंग, ठीक है। ऐसे लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज दैट इज रिलेटेड टू टंग, ठीक है। तो सबलिंगुअल यानी बिलो द टंग दिस ग्लैंड इज प्रेजेंट, ठीक है। फिर इनकी डक्ट्स होती हैं। डक्ट यानी आपको पता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, है ना। विद डक्ट, विदाउट डक्ट यानी ग्लैंड होगा उसमें एक डक्ट प्रेजेंट होगी और उस डक्ट के थ्रू उसका सिक्रीशन फ्लो करेगा, राइट। तो द डक्ट ऑफ दिस पैरोटिड ग्लैंड इज कॉल्ड पैरोटिड डक्ट। ये तो सिंपल है, इसी के नाम से ही है पैरोटिड डक्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेनसन्स डक्ट, STENSON, स्टेनसन डक्ट, ठीक है। डक्ट का नाम क्या है, पैरोटिड डक्ट और स्टेनसन्स डक्ट, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड पता चला, दे आर ऑफ टू टाइप्स, मेजर सलाइवरी ग्लैंड, माइनर सलाइवरी ग्लैंड। माइनर सलाइवरी ग्लैंड आर मेनी नंबर, दे आर प्रेजेंट इन बकल म्यूकोजा, ठीक है, वो प्रेजेंट होते हैं। मेजर सलाइवरी ग्लैंड आर 3. पैरोटिड ग्लैंड, it is placed behind the ear, its duct name is parotid duct or Stenson's duct. And there is submandibular gland, it is placed below the mandible, and sublingual gland, it is placed below the tongue, ठीक है। Now this is esophagus, then esophagus, then esophagus, then comes the stomach, ठीक है। This here is liver, gallbladder, stomach, then comes pancreas, then comes duodenum, then comes jejunum, then ileum, ठीक है। Transverse colon, ascending colon, descending colon, then cecum, vermiform appendix, sigmoid colon, rectum, anus, ठीक है। These are the parts of human digestive system, ठीक है। This is our digestive system. In today's class we learn about till mouth, ठीक है। हम माउथ तक स्टडी करेंगे और फिर बाकी सब क्लासेस में धीरे धीरे हम ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम डिटेल में स्टडी करेंगे। आज हम माउथ स्टडी करते हैं, ठीक है। समझ गए आप पार्ट्स क्या है। सबसे पहले माउथ, देन ओरल कैविटी दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बक्कल कैविटी, सलाइवरी ग्लैंड्स, देन फेरिंग्स, देन दिस इज esophagus, then stomach, this is stomach, then pancreas, then stomach, this is duodenum, jejunum, ileum, transverse colon, ascending colon, descending colon, transverse, ascending, descending colon, ileum, cecum, vermiform appendix, rectum and anus. We'll study all this in detail, ठीक है। Alimentary canal begins with anterior opening the mouth and it opens posteriorly through anus, ठीक है। Starting point is anterior opening is mouth and it posteriorly it is anus, ठीक है। Mouth leads to buccal cavity or oral cavity. After mouth leads us to buccal cavity or oral cavity. Oral cavity has teeth and tongue. What is present in oral cavity? Oral cavity में teeth और tongues present है, ठीक है। oral cavity में दो चीज़ें हैं। oral cavity is also called buccal cavity. उसके अंदर दो चीज़ें हैं, teeth और tongue, ठीक है। teeth और tongue, ठीक है। अब हम teeth के बारे में पढ़ते हैं। जो teeth है, teeth humans have थिकोडोंट का मतलब क्या होता है कि टूथ आर एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन। इन ह्यूमन बींग्स द टीथ आर एम्बेडेड इन जॉ बोन, ठीक है। जॉ बोन है, जॉ बोन इज मैंडिबल एंड मैक्सिला, ठीक है। जैसे टीथ होते हैं तो आपको पता है जो नीचे वाला जो बोन है दैट इज कॉल्ड मैंडिबल, और जो नोज से अटैच्ड जो जॉ है जिसमें हमारे टीथ एम्बेडेड है दैट अपर जॉ बोन इज मैक्सिला एंड लोअर जॉ बोन इज मैंडिबल, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स में आप खुद देखो, जो ह्यूमन बींग्स हमारे टीथ है वो सॉकेट्स में एकदम फिक्स है ना, मोबाइल नहीं है, इमूवेबल जॉइंट है। जो सॉकेट है, जो हमारे टीथ सॉकेट है दैट इज इमूवेबल जॉइंट। हमारे टीथ हिल नहीं रहे हैं, राइट। हमारे टीथ एकदम फॉर्मली फिक्स हो चुके हैं। तो जो फिक्स है एकदम परफेक्टली एम्बेडेड है इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन, उसे कहते हैं थिकोडोंट, ठीक है। थिकोडोंट का मतलब क्या होता है, टीथ इज एम्बेडेड इन जॉ बोन, दिस इज थिकोडोंट। फिर है डाइफियोडोंट। डाइफियोडोंट का मतलब क्या होता है
कि देखो डाई मतलब टू, डाई मतलब टू, मोनो मतलब वन, पोली मतलब मैनी, मोनोफायोडोंट मतलब मोनो होगा तो वन, डाई मतलब टू, पोली यानी मैनी, ठीक है। देखो डाई फायोडोंट, एक हाँ डोंट वर्ड कहीं भी आता है इसका मतलब होता है रिलेटेड टू टीथ, ठीक है। डोंट वर्ड इज रिलेटेड टू टीथ, डोंट वर्ड का मतलब क्या होता है, टीथ, ठीक है। इसीलिए ओडोंटोलॉजी स्टडी ऑफ टीथ, देखो ओडोंटोलॉजी स्टडी ऑफ टीथ, ठीक है। डोंट वर्ड का मतलब ही क्या है, टीथ। अब देखो डाइफ्यूडोंट, डाइफ्यूडोंट का मतलब होता है टू सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, टू सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, दैट इज डाइफायोडोंट। अब दो सेट ऑफ टीथ क्या है, दैट इज डेसिडुअस टीथ और टेम्पररी टीथ और मिल्क टीथ, ठीक है। हमारे ह्यूमन बींग्स में दो सेट ऑफ टीथ होते हैं, पहले जो आते हैं दैट इज मिल्क टीथ, ठीक है, मिल्क टीथ, और दे आर टेम्पररी टीथ। बाय दे आर कॉल्ड टेम्पररी टीथ क्योंकि वो गिर जाएंगे, वो जब थोड़े बड़े हो जाएंगे 7, 8, 9, 10 ईयर्स तक, तब तक सारे के सारे जो मिल्क टीथ हैं वो सारे गिर जाएंगे और उसके बाद परमानेंट टीथ आ जाएंगे, ठीक है। टेम्पररी यानी वो चले जाएंगे एक टाइम बाद, इसीलिए टेम्पररी टीथ, ठीक है। एंड दे आर कॉल्ड डेसिडुअस टीथ, टेम्पररी टीथ और मिल्क टीथ जो पहले आते हैं और फिर वो चले जाते हैं, गिर जाते हैं, उसके बाद आते हैं परमानेंट टीथ और अडल्ट टीथ, यानी दो सेट ऑफ टीथ है। समझ रहे हो ना कि ह्यूमन बींग्स हैव टू सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, और टू सेट ऑफ टीथ है इसीलिए उन्हें कहा जाता है डाइफायोडोंट, ठीक है। अब इस पर से दो वर्ड्स और समझो, मोनोफायोडोंट यानी क्या हो जाएंगे, मोनोफायोडोंट यानी वन सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ, कि उनके पास सिर्फ वन सेट ऑफ टीथ है, पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ वन सेट ऑफ टीथ है, तो दैट इज मोनोफायोडोंट, ठीक है। और पोलीफायोडोंट यानी मेनी सेट ऑफ टीथ, मतलब टीथ आए गए फिर वापस आए गए, राइट, यानी पोलीफायोडोंट यानी मेनी सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, ठीक है। डाइफायोडोंट समझ गए आप कि टू सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, फर्स्ट सेट इज deciduous teeth और temporary teeth और milk teeth, second set is permanent teeth और adult teeth, then there is heterodont। देखो heterodont यानी different types of teeth। ह्यूमंस हमारे जो टीथ हैं आप खुद नोटिस करो, क्या सारे टीथ सेम दिखते हैं, सिमिलर है सारे टीथ, नहीं, डिफरेंट है, अलग अलग है। इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, जो टीथ है ना वो 4 टाइप्स के टीथ हैं। ह्यूमन बींग्स में 4 टाइप के टीथ यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, दैट इसीलिए हेटेरोडोंट। तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, होमोडोंट यानी अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सेम टाइप ऑफ टीथ है, लिविंग किसी ऑर्गेनिज्म में सेम टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट है, दैट इज होमोडोंट, एंड इफ डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ्स आर प्रेजेंट दैट इज हेटेरोडोंट। समझ गए आप, यानी ह्यूमन बींग्स में क्या है, थीकोडोंट यानी जो टीथ है वो फर्मली फिक्स्ड है सॉकेट्स में, दैट इज थीकोडोंट। देन डाइफायोडोंट यानी 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। देन हेटेरोडोंट यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, ठीक है। समझ गए आप इतना, चलो अब आगे। हमने देखा डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ क्या हैं, तो देखो इंसाइजर्स, फर्स्ट टाइप इज adult human has 32 permanent teeth. Humans have 32 permanent teeth and they are of 4 different types. These 4 types are incisors, canine, premolars and molars. ठीक है, 4 different types are incisors, canines, premolars and molars. ठीक है, देखो ये जो है the first and second, ये दोनों क्या है, ये दोनों है incisors. Then this third one, this is canine. Then this fourth teeth and fifth, this ये दोनों हैं premolars. Then this 6, 7, 8. See these are molars. ठीक है, incisors, canine, premolars and molars. ठीक है. Then there is dental formula. Dental formula क्या होता है, टीथ्स का अरेंजमेंट जो है वो हमें बताना है. तो बताइए इसमें इंसाइजर्स कितने हैं, देखो 1, 2,
मतलब 2 इंसाइजर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंसाइजर्स लिखेंगे, इंसाइजर्स आर 2। देन कैनाइन, कैनाइन कितना है 1, सो 2 इंसाइजर 2, कैनाइन 1। प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स कितने हैं 1 प्रीमोलर, 2 प्रीमोलर्स, 2 प्रीमोलर्स, सो प्रीमोलर इज 2। देन मोलर्स 1 2 3, 3 मोलर्स, सो इन मोलर इज 3, ठीक है। देखो इंसाइजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2, मोलर 3, 2 1 2 3। इसको लिखते हैं इस तरीके से, यहाँ पर ये जो लाइन मैंने ऐसे डाली है इसे यहाँ पर लाइन डालना है, ठीक है, यहाँ पर लाइन डालना है और फिर नीचे फिर से लिखना है 2 1 2 3, ठीक है। दिस इज डेंटल फॉर्मूला। ये समझ आया आपको डेंटल फॉर्मूला? डेंटल फॉर्मूला क्या है, यानी आपको टीथ्स को लिखना है। तो आप किस तरीके से लिखोगे, इंसाइजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2, मोलर 3, 2 1 2 3 अपॉन में 2 1 2 3। दिस इज डेंटल फॉर्मूला। समझ गए आप? ये तो हो गया अडल्ट फॉर्मूला, ये तो हो गया अडल्ट ह्यूमन के लिए। अभी चिल्ड्रंस, अभी डेसिडुअस टीथ के लिए परमानेंट टीथ आर 32 इन नंबर। देखो एक चीज़ और देखो, कितना है टोटल, 2 1 2 3, 2 + 1 3 + 2 5 + 3 8। यानी देखो दिस इज क्वाड्रेंट, दिस इज 1 क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, सो 8 teeth आर प्रेजेंट here, राइट? 8 teeth and there will be 4 quadrants। देखो सपोज कि दिस इज अपर, दिस इज लोअर जॉ, तो 8 teeth आर प्रेजेंट here, 8 teeth आर प्रेजेंट here, so 16 teeth आर प्रेजेंट, 16 will be in upper jaw, so 32 teeth, ठीक है। समझ गए आप? 32 teeth। अभी यहीं पर अगर मिल्क टीथ होते हैं, मिल्क टीथ, तो मिल्क टीथ में क्या होते हैं, दे आर 20, मिल्क टीथ आर 20 इन नंबर, मिल्क टीथ आर 20 इन नंबर एंड दे आर incisors 2, then canine 1, प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स नहीं होते मिल्क टीथ में, प्रीमोलर्स नहीं होते, सो 0। मिल्क टीथ, मिल्क टीथ में प्रीमोलर नहीं होते, सो 0, ठीक है। 2 इंसाइजर्स विल बी 2, कैनाइन विल बी 1, प्रीमोलर विल बी 0, मोलर्स, देर आर 2 मोलर्स इन मिल्क टीथ, सो 2, ठीक है। तो डेसिडुअस टीथ के लिए डेंटल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2102 अपॉन 2102। समझ गए आप डेंटल फॉर्मूला? 2102 2102, दिस इज डेंटल फॉर्मूला फॉर डेसिडुअस टीथ। डेंटल फॉर्मूला फॉर परमानेंट टीथ इज 2123 अपॉन 2123। ठीक है, तो डेंटल फॉर्मूला समझ गए हम। अब हम टीथ का स्ट्रक्चर देखते हैं कि टीथ का स्ट्रक्चर, टीथ होता कैसे है। हम टीथ पूरा डिटेल में फिनिश करेंगे, फिर हम टंग और फिर हम फेरेंक्स, इस तरीके से आगे जाएंगे, ठीक है। तो चलो टीथ का स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। टीथ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। दीज आर द पार्ट्स, सी दीज आर द पार्ट्स ऑफ टूथ। तो क्या है, सबसे पहले जो अपर लेयर है दिस इज इनेमल, ठीक है। जो अपर लेयर जो टूथ की होती है दैट इज इनेमल। इनेमल के बारे में देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा ऐसा कि विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन बॉडी, बोन, अब उसमें ऑप्शन में होगा बोन, इनेमल, ठीक है। तो बोन इज नॉट द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी इज इनेमल। देन इनेमल के नीचे का जो लेयर है दिस इज डेंटिन, ठीक है, डेंटिन। देन दिस इज पल्प, पल्प इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, पल्प, ठीक है, न्यूट्रिशन पल्प प्रोवाइड करता है। देन दिस आर द गम्स, ठीक है। देन दिस इज सीमेंटम। देखो टूथ, टीथ के ना 3 पोर्शन होते हैं, दिस इज क्राउन, जो आपको वाइट पोर्शन, जो आपको टीथ का जो वाइट पोर्शन जो आपको दिख रहा है ना दैट इज क्राउन, ठीक है, क्राउन। और जो टूथ जो हमारा हमने देखा थिकोडोंट, थिकोडोंट क्या था कि टूथ आर एम्बेडेड विद इन द सॉकेट्स। तो जो टूथ का पार्ट जो सॉकेट में एम्बेडेड है, जो टूथ का पार्ट जो सॉकेट, ये सॉकेट है, ठीक है, ये सॉकेट है, तो जो टूथ का पार्ट सॉकेट, एक मिनट,
जो टूथ का जो पार्ट सॉकेट में एम्बेड है दैट पार्ट इज रूट, ठीक है, दैट पार्ट इज रूट एंड दिस इज नेक, ठीक है। तो टीथ के आपका कितने तीन पार्ट होते हैं, क्राउन, नेक एंड रूट, ठीक है। टीथ हैज थ्री पार्ट्स दैट इज क्राउन, नेक एंड रूट, ठीक है, क्राउन, नेक एंड रूट एंड दिस इज alveolar bone, ठीक है, दिस इज बोन, ठीक है। तो पार्ट्स क्या हो गए, इनेमल, डेंटिन, पल्प, देन दिस इज सीमेंटम, दिस इज पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन, दिस इज alveolar bone, ठीक है, दिस इज alveolar bone। और फिर इस तरीके से ओपनिंग प्रेजेंट है, टीथ के नीचे एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है एंड दिस ओपनिंग इज नोन एज अपाइकल फोरामेन, दिस ओपनिंग इज अपाइकल फोरामेन, ठीक है। इनेमल, डेंटिन, पल्प, गम, सीमेंटम, पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन, alveolar bone, अपाइकल फोरामेन, ठीक है। चलो तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में टूथ पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। चलो हम यहाँ पर आज अभी फिनिश करते हैं, ठीक है। चलो गुड बाय, टेक केयर।